हाँ जी, होमवर्क सेंड कर देंगे, आप पहले पढ़ ले हम। Then the SI unit of speed will become meter per second. ठीक है, generally it is always advised that you should convert your speed unit into SI unit. जनरली यही डिमांड होती है क्वेश्चन की कि आपको जो भी वैल्यूज गिवन है लाइक किलोमीटर, सेंटीमीटर, टाइम में आवर, मिनट, डेज, you should always convert them into SI unit. Like you should convert this into meters, you should convert hour into seconds, minutes into seconds, days into seconds. Right? ठीक है, एक क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Now let us move to few numericals. कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, let us do them. So the first question is, and you know the relation also. ठीक है, in case आपको क्वेश्चन में स्पीड फाइंड आउट करनी है, then you should know the relation. If you remember this, if you have to find speed, then this is d upon t. If you have to find time, then this is d upon s. If you have to find d, then this is s into t. So these formulas we are going to use. ठीक है, but we are focusing more on the units. So calculate speed. First question is, calculate speed if distance is 100 kilometer and time taken is 600 seconds. Can you find out speed in this case? Yes, ma'am. No, ma'am. Let us start. How do you do this? Distance is given to you, which is 100 kilometer. Time is given to you, t, which is 600 seconds. You have to calculate the answer in SI unit, right? So let us convert this. This kilometer is not SI unit. This is not a SI unit. You have to convert this into meter. So kilometer को how do you convert into meter? Yes, ma'am. कैसे करते हैं इसको मीटर में चेंज? Ma'am, Tell me the 1 meter. conversion. 1 kilometer. How many meters are there in this? Ma'am, 1,000. Ma'am, 100 meter. 1000. 1000. 1000 meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 100 will remain same instead of kilometer, because this kilometer is 1 kilometer. Only we are talking about the unit. So 1 kilometer or simply kilometer is 1000 meter. So multiply this by 1000. Right? We can multiply this also, or we can keep it like this also. आप multiply करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो. Then you have to find the speed. Speed is distance upon time. Right? So put your distance, which is 100 into 1000, divided by time is 600. Right? Please do not forget the units also. Mention your units. This is meter. This is second. So now we can reduce it. इसको cancel कर सकते हैं. This 0 will get cancelled. This Yes, 0 ma'am. will get cancelled. ठीक है. So speed is 1000 upon 6. We can reduce it further by 2. 2 से इसको cancel कर सकते हैं. So this will be 2, 3 is 6, 2, 5 is 10 and 2 zeros. This is in fractional form. You can convert this into decimal form also. इसको आप divide करके भी लिख सकते हो. So 166.6. Tell me the unit. What should I write as unit? स्पीड की क्या यूनिट होती है? ये आपका मीटर है, ये सेकंड है. अरे अभी तो समझाया इतना. मीटर पर सेकंड.
So the speed is 166.6 meter per second. किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? Should I repeat it? Ma'am, repeat. Yes, ma'am. Yes, ma'am, repeat. डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर गिवन है, आप इसको मीटर में चेंज कर दो क्योंकि क्वेश्चन में SI यूनिट में आंसर पूछा है. So you should convert this into meter. You know that 1 kilometer is 1000 meter. So simply you multiply this number by 1000. Time is given to you 600 seconds. That is already SI unit. ये पहले से ही SI unit है. So no need to convert. Yes, ma'am. Then we will simply divide because we know that speed is distance upon time. So the distance is this, time is 600. Then you reduce them. इसको आप directly भी divide कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप reduce करके करो. You can divide it directly also. जैसे ही आप divide करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. और यूनिट अभी मैंने बताई है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, किलोमीटर पर आवर हो सकती है, सेंटीमीटर पर मिनट हो सकती है, मिलीमीटर पर डे हो सकती है, कुछ भी यूनिट हो सकती है. यहाँ पर हमेशा डिस्टेंस की यूनिट होनी चाहिए, डिवाइडेड यहाँ पे हमेशा टाइम की यूनिट होनी चाहिए. और जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है जिसको लेकर आपने सॉल्व किया है उसी यूनिट को आपको फाइनल आंसर में लिखना है. जैसे यहाँ पर यूनिट आपकी मीटर थी, सो यू हैव टू राइट मीटर. In division you had this unit second, so meter per second. ठीक है, let us solve another question which is I'm taking थोड़ा सा simple question ले लेते हैं. Again calculate speed if distance is given to you 60 kilometer and time taken t is given to you 1 minute. Find this in SI unit. Find this. इसको 6 किलोमीटर कर लो, ज्यादा हो जाएगा. This is 6 kilometer distance and the time taken is 1 minute, or we can make it 10 minutes also, right? This is the question. Now the question is asking that you have to calculate the answer in SI unit. Is it SI unit, kilometer? No, ma'am. SI unit is meter. So how do you convert this into meter? Multiply by 1000. Very good. Multiply by 1000. So 6 was already there. Multiply this by 1000 meter, right? So Ma'am, this is 6,000. coming out 6000. Ma'am, 6,000. Hanji. Time is 10 minutes. This is not SI unit. What is the SI unit of time? Ma'am, second. 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 So how do you convert this into seconds? Ma'am, 10 into 10 Multiply 10 by into Ma'am, 60. 10 multiply 60. 60. Very good. Very good. 60 because 1 minute is equal to 60 seconds. 60 seconds. Okay. So when you multiply this, you are getting 600 seconds. Right? Now, Yes, when you have ma'am. to find out speed, speed is distance upon time. Yes, ma'am. Distance is 6000 meter. Time is 600 seconds. Seconds. So, what do you get by dividing? This is 6000, this is Ma'am, 600. 60 meter. 60 कैसे? कैंसिल भी तो होगा 60 upon 6. Ma'am, 10 meter per second. 10. Very good. Speed is coming out 10 meter per second. Yes, ma'am. Second. 10. ठीक है? The answer is coming out 10 meter per second. समझ आया ये कैसे करना है क्वेश्चन? Is it clear to everyone now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. Let me see how much Yes, you have ma'am. done. Another question is calculate distance
अभी आपको स्पीड नहीं निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इफ speed is given to you 30 meter per second, right? Speed is given to you 30 meter per 30 second meter per and second. time is given to you 5 minutes. Let us solve it. Speed is given to you 30 meter per second. Both are SI unit, meter Yes, and ma'am. second. ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Time is 5 minutes. Is it correct? Is it SI unit? Yes. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. How do you Ma'am, convert this this is into not SI unit? Ma'am, 5 SI unit. multiplied by Ma'am, 60 5 Ma'am, into 5 multi 60. second. Very good. 5 5 multiplied by into 60. So 60. 5 into 60 is 5, 6, 300. 300. 'Ma'am, 300. 300 seconds. Now you have to find out distance. Can you tell me the formula Distance. for distance? Speed multiplied Yes, by ma'am. time. Speed multiply Very time. good. Very good. Well done. Speed multiplied by time. Time. Right? So what is the speed? 300 Ma'am, 30 meter per second. 30 30 meter per meter per second. second. ठीक है? Time is 300 300 Second. seconds. Second. Now what do you get when you multiply? 30 This meter. second, these two units will get cancelled. Both are same, numerator and Yes, ma'am. denominator. So you will left with 30 into 300 meter. When you Ma'am, multiply 9,000. Ma'am, 9,000. 9,000. 9,000. Very good, very good. 9,000 meter is the answer. If I am asking calculate the distance in kilometer, then how do you convert this into kilometer? Yes, ma'am. बताओ कैसे किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे? Ma'am, 9 divide करके. into Ma'am, 9. yes, Ma'am, divide by 1000. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 9 into 1000 मीटर, और आपको पता है 1000 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 किलोमीटर. 1 Yes, kilometer. ma'am. 9 Equal into to 1 किलोमीटर. Ma'am, kilometer. ये 9 Ma'am, किलोमीटर आ गया. और ऐसे भी कर सकते हो, और आप कैसे कर सकते हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू 9000 मीटर डिवाइडेड बाय 1000. ठीक Meter. है, इसको आप Yes, 1000 ma'am. से Equal डिवाइड to कर दो, 9 kilometer. Ma'am, तब 9 भी आप इसको kilometer. कर सकते हैं. ठीक है, we have solved Yes, almost ma'am. 2-3 questions. Is it clear to everyone? सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Any step, Yes, any doubt? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us move to the next topic, which is speedometer and odometer. What do you understand by these two terms? Speedometer, अब you should have a question कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, जैसे टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक है, और Yes, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्केल है, तो स्पीड को मेजर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए. Ma'am, So we Yes, have a ma'am. device. हाँ जी. मैम स्पीड को मेजर करने के लिए होता है स्पीडोमीटर. Yes, very Yes, good. ma'am. Speedometer is a device which is used to measure speed. अगर आपने आपके घर में ओडोमीटर अगर मैम व्हीकल है, व्हीकल की मूवमेंट को मैम मेजर करता है. डिस्टेंस को मेजर करता है. मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ दोनों. मैम स्पीडोमीटर ये व्हीकल का आपको मूवमेंट को, मैम व्हीकल का बुक कोई में, आपको बुक में फिगर 13.7 में दिया हुआ है ये स्पीडोमीटर. और आपने अगर आपके घरों में व्हीकल्स है, कार है या बाइक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा एक जहाँ हैंडल होता है वहां पे एक सर्कुलर इस तरीके का बना होता है डिजाइन, जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे 80 तक ऐसे लिखे होते हैं. और एक Yes, निडल ma'am. होती है जो कभी इधर होती है कभी इधर होती है. ठीक है, मैम और सुई यहाँ होती है कॉर्नर उसपे. में, हाँ कॉर्नर में लिखा होता है km/h. Yes. अगर नहीं है तो अभी आप Yes, देख लेना ma'am. जाके, अभी आपको खुद मैम समझ आ जाएगा. तो इस केस में होता क्या है, ये जो स्पीडोमीटर है ये आपकी स्पीड को मेजर करता है. जैसे अभी आप बाइक चला रहे हो तो आपकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, तो ये जो स्पीड है, ये जो निडल है, दैट विल आल्सो मूव कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम हियर एंड देयर. जैसे अगर आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. अच्छा, बाकी सबको तो आवाज आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? यस मैम आपकी वॉइस क्लियर आ रही है. देखो
So speedometer is a device which is used to measure speed. As your needle is wearing, जैसे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है, खाली रोड मिल जाता है, तो आपकी जो निडल है 40 तक पहुंच जाती है, 50 तक पहुंच जाती है, स्पीड ज्यादा हो जाती है। और जब आपका मैम 100 क्राउडेड तक भी रोड चली होता जाती है, है। जब क्राउडेड रोड होता है तो ये 10-20 इस रेंज में रहती है। तो यहाँ पर मैम इस स्पीडोमीटर से, हाँ जी मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा। स्क्रीन बच्चा मैम आपको भेज दिया जाएगा, ये कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, आप अभी समझ लो, दैट विल बी एनफ। ठीक है, तो स्पीडोमीटर वो डिवाइस है जो हमें स्पीड को मेजर करके बताती है। और ये जो स्पीड मेजर होती है ये होती है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहाँ पर इसके कॉर्नर में लिखा होता है km/h। इसका मतलब ये जो स्पीडोमीटर है ये स्पीड कौन सी यूनिट में दिखाता है? मीटर पर आवर। और ऐसा यूनिट किलोमीटर क्या पर होती आवर। है? स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है? मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट, यूनिट बच्चे, यूनिट अभी तो मैम पढ़ा है। यूनिट। हाँ जी यूनिट, भूल गए इतनी मैम जल्दी? मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। ये है एसआई यूनिट। लेकिन आपके व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर होता है वो कौन सी यूनिट दिखाता है? किलोमीटर किलोमीटर पर अपॉन आवर। आवर, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपका जो भी व्हीकल है वो 1 आवर में कितने किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, ये हम स्पीडोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और डिवाइस होती है ऑडोमीटर। जैसे कि आपने कभी अगर कभी सुना है किसी को कहते हुए कि आज तो मैंने इतने किलोमीटर तक बाइक चलाई, ठीक है, यस या मैम। आज इतने किलोमीटर तक हमने ट्रैवल किया है। वो जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो कि आपने व्हीकल ने कितना मूवमेंट किया है, कितना डिस्टेंस व्हीकल ने ट्रैवल किया है, वो जो मेजरमेंट होता है वो हम करते हैं ऑडोमीटर से। ठीक है, ऑडोमीटर क्या दिखाता है? डिस्टेंस को, कि आपके व्हीकल ने एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो जो भी डिस्टेंस कवर किया जाता है व्हीकल ने, दैट इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम इंस्टेंट स्पीड देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी स्पीड कितनी है। ऑडोमीटर से हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर डे में या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में व्हीकल ने कितना मूवमेंट किया है या कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो इनिशियली आपके ऑडोमीटर पे लिखा हुआ था 1000 किलोमीटर। इसका मतलब कि आपके व्हीकल ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुका है। अभी आपने कुछ ट्रैवल किया, आप कहीं पर गए और अब आपका ऑडोमीटर शो कर रहा है 1020 किलोमीटर। ठीक है, ये मैम पहले था। 20 किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले जो ऑडोमीटर में सिंबल था दैट वाज 1000 किलोमीटर। आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद आपका ऑडोमीटर शो कर रहा है 1020 किलोमीटर। तो इसका मतलब आपके व्हीकल ने कितना ट्रैवल किया है? देख मैम लो इन 20 दोनों में कितना किलोमीटर। डिफरेंस है, 20 किलोमीटर। सो द व्हीकल हैज ट्रैवल्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, और ये चीज हमें कैसे पता चलती है? बाय ऑडोमीटर। ये समझ आया सबको? ये कैसे निकाला है ये मैंने? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना यस है, मैम। क्योंकि अभी आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उतना डिस्टेंस ऑडोमीटर ने कवर किया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा है, अच्छा चलो एक बात बताओ, क्रिकेट तो सब देखते हैं? यस यस मैम। मैम। क्रिकेट नो मैम। नहीं देखते हैं? नो मैम। बोरिंग लोग हो आप तो, बताओ क्रिकेट नहीं देखते हो। अच्छा, कभी अगर बाय चांस क्रिकेट का मैच देखा हो तो आपने ये तो देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि बीच बीच में वो आपको कुछ कुछ ग्राफ बना बना के दिखा रखे होते हैं। जैसे इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एक मिनट। जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये सारी चीजें आपको बहुत बार दिखाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा बीच बीच में आपको ये वाला इस तरीके का एक ग्राफ दिखाया जाता है। यस मैम। जैसे मैम कुछ ऐसा। कुछ लाइंस ऐसे बनी होती हैं, एक ये होता है। मैम ये और फिर आपको मैथमेटिक्स में भी होते हैं। मैम एक पाई जी, चार्ट होता है। मैथमेटिक्स में भी होते हैं, लेकिन आते कहाँ से हैं? आप इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हो, मैं ये बता रही हूँ। और आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा
कि ऐसे लाइंस जा रही हैं कि रन रेट इतना इंक्रीज हो गया, फिर रन रेट Yes, इतना ma'am. डिक्रीज हो गया, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इस तरीके का पाई चार्ट कि आपके इतने परसेंट, जैसे ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतने परसेंट नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और इसमें बहुत सारी गैसेस हैं यहाँ पे, ये CO2 है, ये हाइड्रोजन है। देखा है ये सारी चीजें, ये सब कुछ देखा है आपने? Yes, ma'am. ये जो आपका इनिशियली ये वाला जो ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। पढ़ा है आपने? बताओ तो पढ़ा है तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bar. ठीक है, दिस वन इज नोन एज बार ग्राफ। मतलब ये कि आप इस पूरे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अगर मैं कह दूं दिस इज 1 आवर और ये आपका रन रेट है, ठीक है, तो फर्स्ट आवर में जो आपका रन रेट था, क्रिकेट की बात कर रही हूँ, वो इतना था। सेकेंड आवर में जो रन रेट था वो इतना इंक्रीज हो गया। थर्ड आवर में फिर से कम मैम हो फिर गया, डिक्रीज हो गया। मैम फिर इंक्रीज हो गया। हाँ जी, मैम प्लीज रिपीट बिकॉज आई एम डिस्कनेक्टेड। अच्छा सॉरी, रिपीटिंग भाई, रिपीटिंग। देखो बार ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं कि इन सारे ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है। वी आर गोइंग टू स्टडी इट, वी आर स्टडिंग दैट व्हाई आर वी नीडिंग bar graph, why do we need to study line graph, why do we need to study pie chart, ठीक है। और इसी वाले इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम अपने चैप्टर में यूज करेंगे। सो बार ग्राफ, इन दिस यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर आर। जैसे फर्स्ट आर में आपका रन रेट इतना था, मान लो ये 10 है, ये 20 है। देन सेकेंड आवर में रन रेट इंक्रीज हो गया, 20 तक पहुंच गया। थर्ड आवर में रन रेट फिर से कम हो गया, 10 पहुंच गया। देन फोर्थ आवर में फिर से आपका रन रेट इंक्रीज हो गया। सो ये जो कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, दिस कैन बी शोन बाय बार ग्राफ। और इसको हम ये बार, ये वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जैसे आपके चॉकलेट होते हैं, चॉकलेट्स तो सबने खाए होंगे, चॉकलेट Yes, ma'am. जनरली जो Yes, chocolate होता है उसको हम चॉकलेट बार बोलते हैं। तो ये जो शेप है, दिस इज सिमिलर टू दैट, चॉकलेट बार की तरह शेप है, इसलिए इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी बार्स है चॉकलेट बार की तरह, दैट इज व्हाई वी कॉल देम बार ग्राफ, ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ ग्राफ। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ इज लाइन ग्राफ। लाइन क्यों बोलते हैं? अब क्योंकि यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन से रैंडम लाइंस के थ्रू अपने रिजल्ट को शो करते हैं, इसलिए इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। जैसे आपका रन रेट इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ये बहुत बार आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाया जाता है जब भी आप क्रिकेट देख रहे होते हो। तो आपने ये दोनों ग्राफ देखे होंगे कि आपको कॉन्टिन्यूसली ये दिखाया जाता है कि पहले रन रेट इतना इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज हो गया, उसके बाद रन रेट कम हो गया। सो दिस इज लाइन ग्राफ। इससे क्या होता है, इससे आपको एक टोटल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है ओवरऑल। जैसे मान लो आफ्टर 45 आवर्स, सॉरी, जैसे 50 ओवर का होता है एक मैच, तो मान लो कि 30 ओवर के बाद आपको चेक करना है कि हम जीत सकते हैं कि नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर विनिंग। तो आप ये रन रेट देख सकते हो कि हाँ इंक्रीमेंट हुआ था, अब धीरे धीरे रन रेट कम हो रहा है, तो चांसेस कम है। अगर कॉन्टिन्यूसली ये बढ़ता रहेगा तो मतलब हमारे चांसेस ज्यादा हैं जीतने के। सो एक तरीके से हम ओवरऑल अब कोई भी चीज को देखना चाहते हैं तो वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन ग्राफ से। इससे हमें ये पता चल सकता है, एक बार देखने से ही आपको ये समझ आ जाएगा कि रन रेट हमारा किस तरीके से हर एक आवर में चेंज हुआ है, ठीक है। और यही वाले ग्राफ को हम यूज करेंगे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में। वहां पे हम यही चीज स्टडी करेंगे कि टाइम के साथ साथ कैसे आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हर एक घंटे के साथ आपका रन रेट चेंज होता है, ऐसे ही टाइम के साथ वहां पे भी हर एक घंटे या टाइम या मिनट के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस कैसे चेंज होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट इज जनरली यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द परसेंटेज। आप ये कह सकते हो कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और आप बताना चाहते हो कि इसमें से इतना हिस्सा इस चीज का है, इतना पोर्शन इस चीज का है, तब पाई चार्ट सुटेबल होते हैं, बेस्ट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, इतना पोर्शन, दिस इज नाइट्रोजन। जैसे अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ में इतना नाइट्रोजन है, ये जो पोर्शन है डॉटेड ये ऑक्सीजन का है, इतना H2 है, इतना CO2 है, ये अदर गैसेस है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये बस मैंने एग्जांपल दिया है
सो यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, इस पाई चार्ट के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि हमारी अर्थ में कितना ज्यादा नाइट्रोजन है और कितना कम अमाउंट में और अदर गैसेस हैं। ठीक है, ये तीनों समझ आ गए सबको। हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं लाइन ग्राफ, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दीज टू, but you should understand the difference and why we are using different types of graphs and chart. ठीक है, is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now let us move to the distance time graph. We are going to represent our distance and time graph, which is nothing but a line graph. एक line graph ही है, मतलब हम इसको एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस और टाइम को। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस गिवन है, आपको कुछ स्टेप्स गिवन है, ऑल दो स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बिफोर दैट वी शुड मैम अंडरस्टैंड रिपीट द कर दीजिए एक बार मैम, बार ग्राफ से मैम डिस्कनेक्ट हो गए थे। सारा रिपीट करूं? बच्चे बार ग्राफ आपको पता है, लाइन ग्राफ आपको पता है, ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स दिए थे। लाइन ग्राफ है, दिस इज आल्सो अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरऑल। अगर आपको पूरे 50 आवर्स में देखना है, जैसे एक क्रिकेट मैच में आफ्टर 50 आवर्स यू वांट टू सी कि कैसे कैसे आपका रन रेट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था, तो उसके लिए बेस्ट है ये लाइन ग्राफ, क्योंकि ये तो आर बाय दिखाता है, हर एक आर में आपकी वैल्यू कितनी है, ये आपको ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन दे देता है। और पाई चार्ट जो है ये आपको एक तरीके का कंपोजिशन दिखाता है, जैसे कि अर्थ क्रस्ट में कितनी अमाउंट में गैसेस हैं, उसमें इतना पोर्शन नाइट्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, अदर गैसेस का इतना पोर्शन है। तो एक तरीके से हमें एक पाई चार्ट के थ्रू ये मिल जाता है कि इतने अमाउंट में इतनी चीजें हैं, इतनी अमाउंट में इतनी चीजें नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। मान लो जैसे आप अपने ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो, अभी हो मान लो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, सो हम इसको पाई चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटर है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, सो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, दीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये आप कह सकते हो इतने पास हुए हैं, इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सारे फेल हुए हैं, और इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एब्सेंट थे। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल आइडिया है ये आपको बेस्ट मिल जाता है जब आपके पास 2-3 तरीके के ऑप्शंस हो, तो पाई चार्ट के थ्रू आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस इतना ही बताया था मैंने अभी तक। ठीक है, लेट अस कम बैक टू आवर लाइन ग्राफ। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाने वाली हूँ, प्लीज बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक ग्राफ पेपर में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे हम उनको स्टडी करते हैं। ये आपकी बुक में गिवन है, फिगर 13.11। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप प्लीज ये वाला फिगर देखो एक बार। एक पूरे ग्राफ पेपर को, दिस इज योर टोटल ग्राफ पेपर। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, वंस आई गेट इट आई विल शो यू, प्रॉब्ली इन टुमारोज क्लास आई विल शो यू। और ये पूरा जो है ये छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, दिस होल ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, now this whole graph is actually divided into 4 parts. ये 4 parts में हम इस टोटल ग्राफ को डिवाइड करते हैं। so 4 parts का मतलब, इसको फोल्ड करो, ये हो गया आपके 2 हाफ, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ। फिर इसको राइट से फोल्ड करो तो आपके एक और 2 तरीके के एक और पोर्शन में बन जाएगा। तो अब आप देखो इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं टोटल। ठीक है, इन 4 पार्ट्स को हम अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, एक साथ स्टडी कर सकते हैं, और इनकी जरूरत कैसे है वो भी देख लेते हैं। These 4 parts are, this is your horizontal line, ये जो आपकी इस तरीके से लाइन जा रही है स्ट्रेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x डैश o x। ठीक है, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज x डैश o x। दिस इज योर वर्टिकल लाइन जो ऐसे खड़ी लाइन है, दिस इज y o y डैश। राइट, जहां पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं,
ये पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट को हम ओ या फिर ओरिजिन भी बोलते हैं। सो ओ इज नथिंग बट ओरिजिन। ओरिजिन का एक सिंपल, अगर आप इंग्लिश में अगर इसका हिंदी वर्जन देखो तो सिंपली आपको पता चल जाएगा। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से सारी चीजें निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो ओरिजिन से ही सारी लाइंस पास आउट हो रही हैं, ओरिजिन से ही सारी लाइंस निकल रही हैं, इसीलिए हम इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स आपके अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं, अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट पोर्शन है ओ वाई ओ एक्स, इसमें ये पूरा पॉजिटिव होता है, पूरा टोटल दोनों ही, इसमें ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो प्लस प्लस। ठीक है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया जा रहा है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी समझ लेते हो तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन हायर क्लासेस, क्योंकि आपको ये खुद से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस होके इसको अच्छे से समझ लेना। व्हेन यू आर मूविंग टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ से जब आप इस तरफ जाते हो, इस केस में ये वाली वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव ही है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, हम सारी चीजों को यहाँ ओरिजिन से मेजर करते हैं, ये ऊपर की तरफ है, ये तो प्लस है। लेकिन जो ये इधर की तरफ है लेफ्ट, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट वाली वैल्यूज को हमेशा नेगेटिव लेना है, और जो डाउनवर्ड्स जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको भी नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो ये लेफ्ट में है, सो दिस इज नेगेटिव माइनस। लेट अस मूव टू दिस वन, इस वाले में जाते हैं। इसमें देखो ये नीचे भी है और लेफ्ट भी है, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस। इस वाले में देखो, इस केस में ये राइट में है, दिस ओरिजिन से दिस इज इन राइट एंड दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो राइट के लिए प्लस, डाउन के लिए माइनस। ठीक है, नाउ दिस इज योर बेसिक आइडिया ऑफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आपका ऐसे दिखता है। वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दिस पोर्शन, हम सिर्फ इस पार्ट की बात करेंगे फॉर आवर लाइन ग्राफ। सो हमारे लाइन ग्राफ में सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज होगा, इसका मतलब सारी वैल्यूज आपको प्लस लेनी है, चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टडी द पॉजिटिव वैल्यूज। सो द स्टेप 1 इज, फर्स्ट स्टेप शोज, आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ द 2 लाइंस। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको ये दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ दीज 2 लाइंस। ठीक है, दिस इज O, दिस इज Y, दिस इज X। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, आपको बुक्स में सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली गिवन है, आप उनको अच्छे से रीड कर सकते हो, साथ साथ बना सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ड्रॉ दीज 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, 2 एक्सेस, और इनको मार्क भी करना है। दिस इज O, दिस इज Y, दिस इज X। तो ये आपके हो गए फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप यू हैव डिसाइड द क्वांटिटी। अब मान लो आपको ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, सो इन द सेकेंड स्टेप यू हैव टू डिसाइड कि डिस्टेंस आपको इस पार्ट पे लेना है या फिर इस जगह लेना है, टाइम को आप इस जगह लोगे या फिर इस जगह लोगे, क्योंकि आपके पास 2 टाइप है ना, 2 ऑप्शंस है, एक तो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है, एक वर्टिकल ऑप्शन है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस और टाइम, राइट। सो यू हैव टू डिसाइड डिस्टेंस विल बी टेकन ऑन विच एक्सिस। ये जो आपका एक सिंगल पोर्शन है OY, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, जैसे OX है, इसको भी हम एक्सिस बोलते हैं। और जब इन दोनों को प्लूरल, दोनों को जोड़ दोगे आप प्लूरल फॉर्म, तो हम उसे बोलेंगे एक्सिस, EX। बस ये I की जगह E हो जाता है, ये प्लूरल फॉर्म है। सो सेकंड पॉइंट है आपका, आपको डिसाइड करना है कि डिस्टेंस आपको कौन सी जगह लेना है, टाइम कौन सी जगह लेना है।